ओके, आज डिस्कस करेंगे डिज़ाइन मशीन्स एलिमेंट का इन द साइक्लिक लोड। एंड स्ट्रेस। तुम्हारे सिलेबस में साइक्लिक लोड की जगह पे लिख दिया है फैटिक फेल्यूर। ओके, जो 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 फैटिक फेल्यूर होगा उसकी शुरुआत साइक्लिक लोड से होगा, एंड देन फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे इंडोलेंस लिमिट। तो साइक्लिक लोड मतलब क्या? जैसा ऐसा लोड जो साइक्लिक नेचर का हो। साइक्लिक मतलब एक पॉइंट से शुरू हो, दूसरा पॉइंट फिर से उस जगह पे आ जाए, उसको बोलते हैं साइक्लिक लोड। यह साइक्लिक लोड को maybe you can say it's nothing but the dynamics load. Okay, the dynamic load means the varies in the magnitude, okay, with respect to the time. मतलब डायनेमिक लोड का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। अब जैसे कि या डायनेमिक हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो टाइम के साथ, या डायरेक्शन चेंज हो जाए टाइम के साथ, वो हमारा डायनेमिक लोड के नीचे में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक हम सिस्टम लें और इस सिस्टम के ऊपर हम एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स अप्लाई करें, if the magnitude of the sigma x is constant, so it is a static load. But dynamic load, when sigma x is the changes with time, suppose that time अभी 1 बजा है, 1 बजे हम लोग मैग्नीट्यूड सिग्मा एक्स अप्लाई किए थे 20 Newton/mm²। आफ्टर टाइम 2 सेकेंड या 5 सेकेंड या 5 मिनट्स लाइक दिस PM, ओके, 5 मिनट के बाद the sigma stress have changed from 20 Newton per meter square to 40 Newton per mm square. So this is a dynamic because the magnitude is changes, but the direction is not a changes. Direction is a constant along the x-axis. But either if you change the magnitude is the same but direction is changes, so it's the come to the category of the dynamic loads. तो ये भी डायनेमिक लोड के ही अंदर आता है। तो ये जितने भी डायनेमिक लोड्स या साइक्लिक लोड, इसी साइक्लिक लोड के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। दूसरा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये पेन है और इस पेन को अगर हम लोग इस तरह से बेंड करेंगे, ओके, बेंडिंग, वी जस्ट ट्राई टू बेंड ऑफ पेन by apply the moment at this both end, okay, a moment, okay, a moment। तो ये जो मेरा पेन है वो इस तरह से थोड़ा सा कर्व बन जाएगा, okay, just like that curve। So what happened, you if observe in the upper layer, if you observe very keen observation, the upper layer is become some elongations, okay, due to when the force moment apply this, due to this bending moment the bending stress produce in the spin. And as you know that the equation of the bending equations, as you already in the in semester 3rd strength of material, you know that the basic equation of this fundamental equation as using in the design of machine element, this is the bending equations. So this is a moment and this is the bending stress. This bending stress, the nature of the bending stress is tensile and the compressive, and the magnitude may be same or may be different. It depends on the y, okay, because the moment of the nature is a constant for the any cross section area, okay, but the y is the maybe changes because y is nothing but the distance of the layer from the neutral axis. This is our neutral axis, okay. The neutral axis is always passes from the center of gravity, okay, for the homogeneous object, but it's not true for the all object, it bus should be the homogeneous object। तो homogeneous के हिसाब से center gravity से pass हो जाता है, is called the neutral axis। The neutral axis may be the varies। For example, if you take such type of the cross section area of the beam
and it is assume the first case it is a homogeneous, okay, homogeneous properties materials, then it is a base is a b of, and then this h is the height of this cross section area. Then the neutral axis should be passes through the center of gravity of the object, and center of gravity of this cross section area, as you know, it is passes from the peak point is 2h by 3, and from bottom is dimension is distance is h by 3, is very similar to know. And now, so it is a y is nothing but that the neutral axis distance to the upper and lower fibers. So this is a bending stage. So what happened in this case, you this is our bending stage in the nature is tensile nature, which try to the tensile to try to the elongate all the material to the upper fibers. This is the sigma b, and as well as you have, you look here, this is a lower bottom size. In this the this try to the material, this stress to try to the material to the to compress the material, because the length is here decreasing way. You can observe in the also an experiment. So this is try to the this motion to the compressive, okay. But see, this is the both the magnitude is the same, because the neutral axis in the case is similar to all the case. For example, अगर हम लोग ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग स्क्वायर के ले लेते हैं, तो ये इसका मेरा b हो गया, तो यहाँ से y का वैल्यू b/2 होगा, तो नीचे वाला भी b/2 ही होगा। तो जब ये इस तरह से क्रॉस होगा तो ये नीचे वाला भी b/2, इधर से भी b/2, इधर से भी b/2, तो इस हिसाब से नेचर जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत सेम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा मेरा। इसीलिए क्या होगा कि हमारा टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर बन जाएगा। तो ये चीज़ फर्स्ट केस में ऐसा हो गया, ओके। तो इट इज़ स्टैटिक्स बिकॉज द मोमेंट इज अ फिक्स, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ फिक्स। अब सोचो कि ये जब ऐसा घूम रहा है तो क्या करते हैं कि ये चीज़ को हम घुमा दिए, ओके। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ मेरा है, यहाँ पे इससे साफ साफ दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ अग्नि 4G 0.5 mm पेन का नाम है। तो अगर इसको इधर इस तरह से पुश करेंगे तो इस तरफ तो कंप्रेसिव लगेगा और इसके ऊपर बड़ा टेंशन लगेगा। अब क्या करते हैं कि ये अगर ये चीज़ मेरा रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट करके जब ये इधर आएगा, अब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो देखो कि ये ला जो अग्नि यहाँ लिखा हुआ ये चीज़ में अब टेंसाइल पैदा होगा, ओके। इनिशियल में क्या था, ये इनिशियल में यहाँ पे था ये कंप्रेसिव होता था, अब यहाँ पे टेंसाइल होगा। तो क्या ऑब्जर्व किए कि फर्स्ट केस में या कंप्रेसिव, दूसरे केस में टेंसाइल। जब ये कंटिन्यूस रोटेट करते जा रहा है और मेरा मोमेंट भी लगते जा रहा है, केस हर केस में है, तो इस ये एक चीज़ में मेरा टेंसाइल भी लगेगा एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन बाद इसमें कंप्रेसिव भी होगा। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि पहले केस में कंप्रेसिव था जो कंप्रेस करता था, और दूसरे केस में क्या होगा, टेंसाइल हो गया जो कि एलोंगेट होना शुरू हो गया। So it is a nature, it is a type of the cyclic load, because direction is changes, but as you it is simple, magnitude is simple, a constant. So it is a the dynamic load, because the magnitude is same but direction should be changes. So इसी तरह डायनेमिक लोड को हम तीन कैटेगरी में हम क्लासीफाइड करते हैं, ओके। तीन कैटेगरी में इसको हम क्लासीफाइड करते हैं। जो क्लासिफिकेशन वो इस तरह से मेरा, एक होता है फ्लैक्चुएशंस, दूसरा होता है रिवर्स, तीसरा होता है रिपीटेड। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। रिवर्स का मतलब होता है रिपीटेड और रिवर्स और फ्लैक्चुएशन, तीनों का तीनों डायनामिक्स के ही नेचर का हमारा फोर्स होता है। अब इसमें समझ लो कि इसमें क्या होता है रिपीटेड में और रिवर्स में। रिपीटेड का मतलब होता है, बहुत आम भाषा में समझ लो, रिपीटेड मतलब कि इसको पहले लाइक ये कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे में एक तार हो गया, ओके, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल एलिमेंट। तो अब हम क्या कहें कि इसको हम ऐसे कंप्रेस किए, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपीटेड, ओके। तो इसको हम ऐसे किए तो यहाँ पे मेरा कंप्रेस हुआ, टेंसाइल हुआ है, कंप्रेस हुआ, और फिर इसको हम ऐसे कर दिए तो अब ये दोनों जीरो हो गया। फिर हम वापस किए, फिर हम ऐसे किए, मतलब
जो कंप्रेसिव जहाँ पर टेंसाइल लगता था वहाँ पर टेंसाइल नहीं लगेगा, ठीक है। और जो कंप्रेसिव वहाँ पर कंप्रेस लगता है, लेकिन क्या होगा कि एक समय टेंसाइल फिर ज़ीरो, फिर टेंसाइल ज़ीरो। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द रिपीटेड लोड। सेकेंड है रिवर्स लोड। रिवर्स मतलब टेंसाइल कंप्रेसिव, ये जो ऊपर फाइबर है यहाँ पर टेंसाइल लग रहा है, अब क्या लगेगा कंप्रेसिव, फिर टेंसाइल, फिर कंप्रेसिव। बिकॉज यहाँ पे रिवर्स कर रहा है कि जो एक में टेंसाइल लगता था अब कंप्रेसिव लगेगा। इट्स जस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्स। एंड फ्लैक्चुएटिंग लोड इज नथिंग बट जस्ट इट इज़ एनी मीडियम, मतलब कि ये टेंसाइल है तो अब यहाँ पे जाएंगे कंप्रेसिव वापस, मतलब कि पूरे यहाँ पे जितना हम लोग कंप्रेसिव करते थे टेंसाइल उतना ही कंप्रेसिव भी करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा बैंड करेंगे उतना ही ज़्यादा हम ऊपर बैंड करेंगे, मतलब ये चीज़। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में क्या होगा, जितना हम ऊपर बैंड किए हैं ज़रूरी नहीं है कि हम रिवर्स करने वक्त हम उतना हम कम करेंगे, ठीक है। फिर ऊपर में कम किए और वापस बड़ा कर दिए, तो ये ज़रूरी ये नहीं है कि फिक्स है, मतलब रिवर्स और फ्लैक्चुएटिंग लोड के बीच में ये हमारा फ्लैक्चुएटिंग लोड आता है, इसी को बोलते हैं ये डायनेमिक लोड के 3 क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है। तो फैटिक लोड क्या बोलता है, फैटिक लोड बोलता है कि जब हम एक किसी भी एलिमेंट को बार बार हम लोग, जैसे एक एलिमेंट है बार बार हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कर रहे हैं इस तरह कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, मटेरियल में टूट जाएगा। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं कि एक जो पतला सा छड़ होता है, पतला सा तार होता है जिसको घर के ढलाई में हम लोग छड़ को बांधने में यूज़ होता है, वो चीज़ को तोड़ने का इस्तेमाल कर रहे हो कि तुम कैसे करोगे, तो वो तुम देखो मिस्त्री को वो लोग कैसे तोड़ता है उस तार को, वो लोग ऐसे करके तोड़ देता है। लेकिन कहोगे कि उस तार को जरा ऐसे खींच के तोड़ने के लिए, तो वो नहीं टूटेगा, बिकॉज वो जो मटेरियल बना हुआ है उसका फैटिक स्ट्रेंथ वेरी वीक, लेकिन उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत। जैसे कि वो पत्ता सा तार लगभग 50 टन जैसे चीज़ को उठा लेता है, लेकिन तोड़ने के लिए हम सिर्फ 2-3 बार ऐसा करेंगे तो टूट जाएगा। इसका मतलब है कि उसका फैटिक स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत ज़्यादा है। तो फैटिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि बार बार हम चाहे रिपीटेड फ्लैक्चुएटिंग या रिवर्स लोड को हम कंटिन्यू देते रहें, डायनेमिक लोड देते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि वो टूट जाएगा मेरा। इसी को बोलते हैं हमारा फैटिक स्ट्रेंथ। और वो लिमिट, जिस लिमिट तक जाकर वो अपने आप को बर्दाश्त कर सकता है, उसी को बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। ओके, तो एंड्योरेंस लिमिट मतलब वो लिमिट जहाँ तक जाके मटेरियल मेरा अपने आप को फर्स्ट टाइम जब ब्रेकिंग होगा उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। तो इसको हम लोग बार बार हम साइकिलिंग से करके चेक करते हैं। ओके, साइकिलिंग करके चेक करते हैं कहाँ पे हमारा टूटता है। तो इसका एक ग्राफ तैयार होता है, लेकिन उससे पहले कि एक जो हमारा रोल होता है कि कैसे हम टेस्ट करते हैं, एक मशीन्स हमारा आता है और उसको हम लोग बार बार बेंडिंग मोमेंट की मदद से हम लोग उसको चॉक करते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसे ये हमारा टूटता है। नाउ अब जो मेरा एक जो सबसे बड़ा जो थ्योरी है, जो मेरा इसको कहते हैं मूरे थ्योरी, जिसकी जो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द मूरे एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या करता है कि एक हमारा एक सिस्टम डिवाइस ले लेता है, जैसे कि एक तरह का मशीन्स हो गया है। ओके, सिंपली, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एक हम मोमेंट हम लगा देते हैं, मोमेंट। ओके, एम एक कंटिन्यूस में रोटेट कर रहा है एन स्पीड से। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जब मोमेंट लग गया है तो ये फर्स्ट स्टेप टेंसाइल कंप्रेसिव होते रहे क्योंकि इसमें घूम रहा, और प्लस इसके ऊपर हम एक लोड भी अप्लाई कर दिए। ओके, तो इसमें ज़्यादा कभी टूटेगा। तो देखा गया है कि नंबर ऑफ साइकिल रोटेशंस और ये लिमिट, ये जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ लिमिट, तो इस हिसाब से एक ग्राफ बनता है। तो लगभग 10⁻⁻⁶ रोटेशंस करने पर, लगभग इतना रोटेशन करने के बाद ये चीज़ हमको एक जिस रोटेशन पे आके ये टूट जाता है, लगभग अप्रॉक्स माना गया 10 पर इतना साइकिल के बाद इसमें एक इसका एंडुरेंस लिमिट मिल जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे साइकिल टेस्ट करते हैं तो बार बार रोटेट करके हम चेक करते हैं कितना बार घूमेगा, स्पीड करेगा, ताकि हमारा फर्स्ट टाइम इसका फ्रैक्चर हमको दिखेगा। तो वो पहला फ्रैक्चर पॉइंट जो एक्सपेरिमेंट करके देखा वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन करके लिए, तो देखा गया 10⁻⁶। दूसरे मटेरियल को हम लोग इसी के रेफरेंस से चेक करते हैं कि उसका फैटिक रेजिस्टेंस में कितना ज़्यादा है कितना नहीं जाता है। तो एंड्योरेंस लिमिट के लिए हमारा आता है, इसको बोलते हैं SEE का मतलब एंड्योरेंस लिमिट ऑफ दिस मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल का स्टैंडर्ड मटेरियल का बताया जाता है। ओके, तो बस ये बेसिक सिंपल इस पे था, इस पर हम डिज़ाइन करेंगे। ओके।